Within these walls, some of the world's finest health products are researched, developed, and manufactured. For more than 30 years, Myron Wentz began his studies in the pre-med program at North Central in Illinois, where he cultivated his desire to create the tools and solutions for medicine, rather than solely practice as a medical doctor. He took a job for the state health department as a microbiologist studying immunology and infectious diseases. His desire to master the skills of his job led him to the University of Utah, where he received his doctorate in microbiology and immunology. I realized early on that in the laboratory we were handicapped with the unavailability of test systems to identify viral infections. And it was after 3 years of dealing and being frustrated with this that I decided to try my hand at it. Help supplement his own health. And when his friend brought in those supplements, he looked at the label and he said, I can't believe this is what they're feeding to humans. If we fed these same nutrients to the cells in our laboratory, we'd be out of business. In 1992, he sold Gull Labs to found USANA Health Sciences, now fully dedicated to solving the problems of cellular nutrition by transitioning his efforts from diagnostics to maintaining health. Back in the early 90s, I think the supplement market was dominated by the supermarket brands. And Dr. Wentz's vision was to develop the highest quality, science-based nutritional products possible that would move the needle on the supplement industry. Despite USANA's global success in providing the best cellular nutrition products, he felt a growing restlessness. While the company had made remarkable strides in maintaining the health of millions of people, he knew there was more to be done in the war against degenerative disease. Driven by his unwavering commitment to advancing health, he decided it was time to channel his knowledge and expertise into the realm of treatment. In the year 2000, he founded the Sonovive Medical Institute, a holistic healing and wellness facility that would provide the most advanced treatments available. He wanted to create an atmosphere almost like a laboratory where there were no toxins, where people could come who needed to have their health improved and could receive through a natural way the best opportunity to maintain and or regain their health. And it's one of the premier facilities in the world. Just as Gull Labs and USANA were ahead of the curve when they were founded, he was determined Sonovive would go a step further. The Institute became a pioneer in using state-of-the-art diagnostic and therapeutic methods to treat patients with complex health conditions. Dr. Wentz's vision. Good morning, everyone. How are you all? प्लीज़ जल्दी से अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें, बुलाएं. दिस इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. हम प्रोडक्ट्स के बारे में तो आज बात करेंगे, बट हम ये भी बात करेंगे कि हम लेबल्स को जो हम बहुत इग्नोर करते हैं एक्चुअली इन आर जनरल लाइफ ऑल्सो. जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट से या सप्लीमेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लेबल्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड मैं नेहा आहूजा. आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, मोर देन 12 years of experience in this field only, nutrition, dietetics, food. और आज हम यूसाना हेल्थ साइंसेज के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि क्या इंटेलिजेंस एक्चुअली टेक्नोलॉजी क्या है, और हमारे जो कॉम्प्लेक्स हैं इंटेलिजेंस जो प्रोडक्ट्स हैं इस टेक्नोलॉजी या इस कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड हैं वो एग्जैक्टली है क्या, और हम लेबल्स को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, और इसका सही टाइम क्या है इन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करने का, और एक डाइट के साथ हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है. सो प्लीज़ प्लीज़ इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. आप प्लीज़ सबको इनवाइट करें, अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें सो दैट दे जॉइन क्विकली. हम 1-2 मिनट में स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन
गुड मॉर्निंग विपिन जी, कल्पना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गौरव। ओके। सो आप कभी मुझे आप ये बताएं चैट पे कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट, आई थिंक सिंपल से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर बिस्किट्स, या फिर आप जब ग्रोसरी खरीदते हैं तो क्या आप अपने लेबल्स को पीछे कभी पढ़ते हैं कि चिप्स अगर मान लीजिए हमने एक खरीदा तो उसमें कितना कैलोरी है, क्या प्रोटीन है, कितना फैट है, उसमें क्या रेकमेंडेड है कि हमको कितना खाना है, क्या बस चिप्स खरीदा, खोला और खा लिया? राइट, यस, शिराज जी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हो? आपको जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या वैसे भी, हाउ विल यू नो कि आप कितनी एनर्जी ले रहे हैं उससे? क्या उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं भी कि सिर्फ हम फैट खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं? विपिन जी कह रहे हैं खोला और खा लिया। यस। कभी बिस्किट्स हम इतना हम अपनी ग्रोसरी में लेके आते हैं, बिस्किट्स हैं या कोई वो शरबत जैसे लेके आते हैं समर्स में, तो क्या हम देखते हैं कि उसमें कितना शुगर है या उसमें रेकमेंडेड कितना है? ये कोई भी नहीं चेक करता, राइट? बट आज के बाद अगर आप ये सेशन ध्यान से सुनेंगे तो आप ज़रूर चेक करेंगे। आप अपने ही जो घर में ग्रोसरी आइटम्स हैं आपके, चाहे वो दाल है, चावल है, बिस्किट्स हैं, नमकीन है, जो भी है, इवन योर सप्लीमेंट्स, आप पीछे देखेंगे और उसको आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बेटर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। आई थिंक 1-2 मिनट और रुकें। ओके, प्लीज़ प्लीज़ मैसेज एवरीवन, बिकॉज हमारी आई थिंक डे बाय डे स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट लेट्स कॉल एवरीवन। ये सेशंस इंफॉर्मेटिव होते हैं। आप जब भी फील्ड में जाते हैं, अगर आपको ये नॉलेज होगी, सो दे विल एक आप अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे। आपको जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितना अच्छा आप अपने नॉलेज पे, प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, उतना ही आप आगे अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाएंगे। सो दिस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। होप माई स्क्रीन इज विजिबल। आपको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? प्लीज हम ओके, दैट्स ग्रेट। आई विल ऑल्सो मैसेज एवरीवन इन द कम्युनिटी ग्रुप की ज्वाइन करें जल्दी से। ओके। सो पहले हम बात करते हैं, अगर हम यूसाना की बात कर रहे हैं तो यूसाना मीन्स ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। वो हम कैसे अचीव करते हैं? थ्रू आर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सेल सिग्नलिंग के थ्रू। मतलब ऐसे क्या, हमारे मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। लोग कहते हैं, जब भी मैं किसी ट्रेनिंग में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि मार्केट में सप्लीमेंट्स हैं, तो आप में और उन सप्लीमेंट्स में क्या डिफरेंस है? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो यूसाना है वो सेल्यूलर लेवल तक जाके सेल सिग्नलिंग पे जो है बेसिक्स, हमारा जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सेल सिग्नलिंग इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। सो इंटेलिजेंट क्या है? एक सप्लीमेंट का डिज़ाइन है। ये कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कोई ऐसा कोई सिंगल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन नहीं है। ये न्यूट्रिशनल टेक्नोलॉजी है। मतलब ये जो सप्लीमेंट का डिज़ाइन किया गया है ना, जैसे कोर एसेंशियल्स में हमने ये विटामिन्स डाले हैं, इतनी क्वांटिटी में होने चाहिए, ये मिनरल्स हैं, साथ में ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कौन से फाइटो न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में यूज होंगे, ये जो डिजाइन किया गया है, इसको हम इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेसिकली ये जो है जो जो सेल के फंक्शन को बेसिकली वो टारगेट करता है। जो इनका जो कॉम्बिनेशन, जो डिजाइन है, ये आपके सेल फंक्शन को इन्हांस करता है। बेसिकली आपके जो क्या होता है कि जो सेल्स है ना, वो हमारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, राइट?
वो सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। जैसे दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन सेंस कि आपके सेल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिएंट्स ठीक है कि नहीं है, क्या ऑप्टिमल क्वांटिटी है कि नहीं, राइट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है न्यूट्रिएंट्स के। दे कैन सेंस इट, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और हमारी बॉडी मतलब कितने कितने सेल से बनी है, सेल से ही बनी है, राइट। सो जब भी कोई इनके पास ना बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसीव कर सकते हैं, जो सेंस कर सकते हैं कि ओके ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना आपके पास न्यूट्रिएंट्स का, वो ठीक है या नहीं ठीक है, राइट। तो जैसे ही उनको एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट डोसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट फॉर्मेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो उनके अंदर एक बेसिकली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, यू नो। और वो जो जो रिएक्शन है ना उस चीज को सेंस करके, वो हमारे जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज अभी सेलुलर अपने सेल अपने कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज या इतने ऐसे फंक्शन जो नहीं कर पा रहा था बिकॉज उसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, वो भी जो फंक्शंस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो सिग्नल है ना, ये सेल सिग्नल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि ये जो सेल सिग्नलिंग है पाथवे, ये इसको एक्टिवेट के लिए हमें एक्चुअली कितनी क्वांटिटी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की या फाइटो न्यूट्रिएंट्स की, कितना कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये देखा गया कि अगर हम बहुत छोटी क्वांटिटी भी डालते हैं राइट न्यूट्रिएंट्स की, यू नो, तो ये सेलुलर जो सिग्नलिंग है वो एक्टिवेट हो सकती है। तो वो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, वो क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, इस पे डॉक्टर मायरन वेंस ने इतनी डिटेल स्टडी की है कि उस जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सेलुलर लेवल तक जाके उसको एक्टिवेट कर सकें, सेल सिग्नलिंग पाथवे, सेलुलर फंक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट कर सकें। सो ये जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सप्लीमेंट्स इन जनरल क्यों हमें खाने चाहिए? ये अगर आप ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 73%, ये एक सर्वे हुआ था इन अडल्ट्स में, डाइट देखी गई थी कि प्रोटीन क्या कंज्यूम कर रहे हैं लोग अडल्ट, तो उसमें देखा गया था कि 73% इंडियन अडल्ट्स प्रोटीन में डेफिशिएंट है, 60% अडल्ट जो हैं वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है, 54% आयरन में। ऐसे ही कितना परसेंटेज ऑफ पीपल कितने न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत एवरेज नंबर्स हैं। जो अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल में जाएंगे तो ये जो डेफिशिएंसीज है ना, ये बहुत इंक्रीज भी कर सकती हैं, विटामिन डी जैसे कई एरियाज में देखा गया है कि 90% पॉपुलेशन भी विटामिन डी डेफिशिएंट है। वैसे ही ये सारे नंबर्स अगर हम बहुत स्पेसिफिक एरियाज या ग्रुप ऑफ पीपल में जाएं तो ये डेफिशिएंसीज और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, राइट। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें सप्लीमेंटेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी सॉइल क्वालिटी डिप्लीट कर चुकी है। हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, हम जब ओवर कुक करते हैं, वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा घी में फ्राई करते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। हमारे देश में फूड अवेलेबिलिटी अच्छी है, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज जब हम करते हैं तो उसमें भी न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं। अगर आपको याद होगा, हमारी जो डेबी थे, उन्होंने बोला था कि 1950 में जो आप एक ऑरेंज खाते थे उसमें जितना आपको विटामिन सी मिलता था, वो उस विटामिन सी के लिए आज आपको वही 10 ऑरेंज खाने पड़ेंगे। कैन यू इमेजिन कितना डिप्लीट कर चुका है न्यूट्रिएंट कंटेंट फ्रॉम आवर फूड्स। हमारे अनाज जो बेसिक है हमारा, उसमें भी जो है बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट कर चुके हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स तो बहुत हाई हैं, राइट। रिक्वायरमेंट्स अगर आप ये देखेंगे कि डेली, ये आईसीएमआर ने दिया है हमारी इंडियन पॉपुलेशन को देख के, जहाँ पे देखा गया है कि प्रोटीन 54 ग्राम्स की एवरेज है सिडेंटरी पॉपुलेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए 54 ग्राम्स मेन के लिए और 46 ग्राम्स विमेन के लिए। और अगर आप लेफ्ट में टेबल देखेंगे, ये सारे हमारे फूड की कैटेगरीज हैं,
राइट। इसमें बताया गया कि 100 ग्राम फूड में कितना प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम पल्सेस मतलब दालें, उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है, 100 ग्राम। लेकिन क्या आप दिन भर में 100 ग्राम दाल खाते हैं? एक कटोरी जो दाल हम लेते हैं ना, वो हार्डली 20 25 30 ग्राम दाल होती है, डिपेंड कि आप कितना पतला उसको बना रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा वाटर एडेड है तो वो 15-20 ग्राम से ऊपर नहीं होती, राइट। तो इतना 100 ग्राम रॉ पल्स, ये रॉ फूड्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट। आप मीट भी 100 ग्राम अगर डेली खाएंगे तो उसमें भी आपको 20 ही ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप 100 ग्राम एग मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 एग्स अगर आप लेंगे तो उसमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, राइट। लेकिन आप ये क्या चीजें इतनी क्वांटिटी में खा सकते हैं कि आप 46 या 50 ग्राम, ये तो नॉर्मल है। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, उनकी तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और भी बढ़ जाती हैं, राइट। सो जितना आपका वेट है, आइडियल वेट, फॉर एग्जांपल अगर मेरा आइडियल वेट 60 kgs है तो मुझे 60 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, 55 से 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो हम इतना प्रोटीन जो रेकमेंडेड है और जो हमें मिल रहा है खाने से, वो हमारा गैप कहीं ना कहीं क्रिएट कर दे रहा है, राइट। हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, हम खा इतना ही पा रहे हैं, लेकिन ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर, सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, दे आर नॉट मेडिसिन, दे आर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो आपको टैबलेट के फॉर्म में दिया जा रहा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। जैसे विटामिन सी या फिर विटामिन बी जो है आपको आपके मिलेट्स में, सीरियल्स में मिलता है, वही विटामिन बी हमने और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उठा के हमने टैबलेट्स में डाला है। सो ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं जो आपके गैप को, न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल कर रहे हैं। सो प्लीज, ये कोई डिजीज को ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन यस आपके ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, सेल्स को हेल्दी रखेंगे। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको प्रिवेंट करेंगे अगर आप ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, राइट। अगर अगर आप डायबिटिक हैं फॉर एग्जांपल, और डॉक्टर ने आपको डायबिटीज की मेडिसिन दी है, राइट। सो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आप हेल्दी डाइट नहीं फॉलो कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपने न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर रहे, तो दवाई भी काम नहीं करती है। एक टाइम के बाद दवाई भी काम करना बंद कर देती है, बिकॉज आपने होलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया। सो ये सप्लीमेंट्स आपके ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं, आपकी सेलुलर हेल्थ को टारगेट करते हैं, आपकी ओवरऑल वेलनेस को इम्प्रूव करते हैं, राइट। सो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, कैल्शियम जो है, ये पहले 2010 में आईसीएमआर ने कहा था कि हमें 600 मिलीग्राम की ज़रूरत है, बट अभी रिसेंटली जो है उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से हमारे बोन इश्यूज हो रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उस से रिलेटेड कितने सारे न्यूट्रिएंट्स की उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। आप देखिए, राइट में आरडीए 2010 में क्या क्या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स थी और वो कितनी बढ़ चुकी हैं, राइट। फोलेट, B12 तो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, विटामिन सी 40 रिक्वायरमेंट था बट अभी 80 हो चुका है, राइट। सो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो वही हमारे कैटेगरीज हैं फूड की। रॉ फूड 100 ग्राम आपको कैल्शियम कितना दे रहा है? पल्सेस आप 100 ग्राम खा नहीं सकते हैं, आप नट्स भी 100 ग्राम नहीं खा सकते हैं, 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया। आपको दिन भर का 4 से 5 बादाम या हैंडफुल ऑफ नट्स ही 10 से 20 ग्राम ही आप खा सकते हो, राइट। मिल्क प्रोडक्ट्स 100 ग्राम जो हैं वो आप डेली आप नहीं खा सकते हैं, राइट। इवन आप 100 ग्राम डेली भी खा रहे हो तो भी आप 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम जो है वो पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप 4 से 5 ग्लास दूध पीते हैं ना, तभी आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हम 4 से 5 ग्लास दूध नहीं पी सकते, राइट। तो इसीलिए ये गैप क्रिएट हो रहा है, बिकॉज न्यूट्रिएंट क्वांटिटी एनीवेज जो है वो हमारे फूड्स में डिप्लीट कर चुकी है। हाँ, लेकिन हम एक अमाउंट से ज़्यादा फूड खा नहीं सकते हैं। सो वो गैप हर किसी में क्रिएट हो रहा है, एवरीवेयर। इवन बच्चों में भी क्रिएट हो रहा है, बड़ों में क्रिएट हो रहा है, एल्डरलीज में क्रिएट हो रहा है। उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, हाउ टू रीड द लेबल्स, राइट।
अच्छा, पहले हम अपने ही प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्या आपने अपने प्रोडक्ट को, कोर एसेंशियल्स की बात करते हैं, कभी पलट के देखा है? मुझे आंसर्स चाहिए कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में है, क्या ये परसेंट आरडीए जो लिखा है उसका मतलब क्या है? हैज एनीबडी, ओके रफीक जी ने कहा है, वाओ दैट्स अमेजिंग। अच्छा, परसेंट आरडीए का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? 32 न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन क्या आपने उनकी क्वांटिटी को देखा है? और परसेंट आरडीए का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? यस विजय जी, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, अमेजिंग। सो परसेंट आरडीए मतलब, अगर वो 100% आरडीए है, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है विटामिन डी 100% आरडीए। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सो जो, यस, हाउ मच ऑफ पर्सन डेली रिक्वायरमेंट, विजय जी अमेजिंग, दैट्स रियली वंडरफुल कि अगर आपको ये पता है, दैट्स वंडरफुल। सो सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें, सर्विंग साइज लिखा है, हर किसी प्रोडक्ट में सर्विंग साइज लिखा होता है। मतलब डेली आपको कितना खाना है, व्हाट इज द सर्व साइज। अगर इसमें 56 टैबलेट्स हैं, भरत जी ने भी बताया 33 विटामिन मिनरल्स, बस दिन भर को एसेंशियल प्रमोट करते रहते हैं। ओके, यस आई नो। 100% means which is required on daily is 100% in the core essentials. That's amazing. Yes, that's wonderful, people. So, सर्विंग साइज से स्टार्ट कर रहे हैं हम वहां तक भी आएंगे। सर्विंग साइज मतलब 2 टैबलेट, मतलब हमें दिन भर में 2 टैबलेट्स एक सर्व साइज है। कई लोग कहते हैं कि हम एक ही टैबलेट खा लेते हैं तो इनफ है, दो दो टैबलेट्स क्यों खानी है? क्यों खानी है? क्योंकि 2 टैबलेट्स में हमने आपको जितना विटामिन डी हम देना चाहते हैं, 100% जो देना चाहते हैं, वो आपको 2 टैबलेट्स में मिलेगा। क्योंकि हम एक टैबलेट को बहुत बड़ा नहीं बना सकते थे, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम है, हम एक ही टैबलेट में इतना सारा विटामिन डी नहीं भर सकते थे। इसीलिए हमने सर्विंग साइज रखा है 2 टैबलेट्स। आपको 2 टैबलेट्स लेनी है, जिसमें आपको ईच सर्विंग कंटेन्स, मतलब 2 टैबलेट्स में आपको ये सारे विटामिन्स इतनी क्वांटिटी में मिल रहे हैं। मतलब 2 टैबलेट्स में आपको 600 आयु विटामिन डी मिलता है। मतलब 100% आरडीए, मतलब हमारी रिकमेंडेशन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, वो 600 आयु है दिन भर की, हम उसको 100% पूरा कर रहे हैं 2 टैबलेट्स में। जैसे आप आएंगे करीब, अगर आप देखें कॉपर, कॉपर को हम 58% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं दिन भर में 2 टैबलेट्स। वैसे ही मैंगनीज आपकी 75% जो रिक्वायरमेंट है, उसका हम 75% आपको दिन 2 टैबलेट्स में दे रहे हैं, राइट? सो परसेंट आरडीए जो है ये आईसीएमआर में डिफाइन किया है। आरडीए मतलब हमें, हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए, ये आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिफाइन की है। अगर आप राइट में देखें, क्रोमियम के नीचे लिखा है परसेंट आरडीए कहाँ से लिया गया है, आईसीएमआर 2020, जो लेटेस्ट आरडीएज हैं। सिडेंट्री वर्क, मतलब जो सिडेंट्री विमेन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने कंसिडर किया हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट है अडल्ट्स के लिए बना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए कोई भी जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या लेते हैं। उसका सर्विंग साइज क्या है, डेली हमें कितना रेकमेंड किया गया है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज क्या है, मतलब आपको स्वॉलो करना है, चबाना है, मिक्स करना है, यूज कैसे करना है, ये आप जरूर देखें कोई भी प्रोडक्ट खरीदें। स्टोरेज कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट्स से ही बेसिकली बने हैं, नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो इनकी स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और दूसरा एलर्जन, एलर्जन मतलब आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो इसमें हमें एलर्जन इंफॉर्मेशन भी हर प्रोडक्ट पे आपको दी गई होगी कि इसमें क्या क्या एलर्जिक, थोड़ा बहुत हो सकता है। मिल्क शायद, क्योंकि जो वो जिस यूनिट पे बन रहे हैं वहां पे थोड़ा बहुत मिल्क का कंटामिनेशन या नट्स का कंटामिनेशन हो सकता है, या जो हम, जहां से हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं,
तो जिनको जिनको ये एलर्जी है तो प्लीज केयरफुल होके वो खाएं। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में ये होते हैं। हो सकता है ना भी हो, बट हमें ये लिखना पड़ता है। हो सकता है जिनको मिल्क से एलर्जी हो लेकिन वो ये खाएं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा एफएसएसएआई मैंडेट करता है कि आपको ये चीजें बतानी है। ऐसा नहीं है कि इसमें मिल्क है, ऐसा नहीं है कि इसमें नट्स हैं, सोय है, लेकिन जहां जिन लाइंस में ये बनता है वहां पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यू you नो ऐसी चीजों का फूड प्रोडक्ट्स और भी बन रहे होते हैं, राइट? तो उनसे थोड़ा बहुत लाइंस में कंटामिनेशन थोड़ा बहुत हो सकता है। इट डजेंट मीन दैट इट हैज मिल्क, नट्स या सोय। इट माइट बी हैविंग वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज, क्योंकि वो उन लाइंस पे बन रहा है जहां पे और फूड्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, राइट? तो दैट इज वाई वार्निंग साइंस जरूर पढ़ें कि इसमें लिखा है प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग विमेन। अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, सिवियर कोई डिजीज है, सो प्लीज बिना फिजिशियन बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने हैं। It's very very simple, but we also take nutrients from food as well, so if extra nutrients will go in our body will not harm us. Okay, so ये सबसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन डी ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको फूड से मिलता ही नहीं है। सो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, ये एफएसएसएआई ने डिफाइन किए हैं कि आप 100% से ऊपर नहीं दे सकते। स्पेशली बी विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? सो अगर उनका एक्सेस भी होता है वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो निकल जाते हैं, राइट? सो एफएसएसएआई ने हमको मैंडेट किया है कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट 100% की रिक्वायरमेंट से ऊपर नहीं दे सकते। और हर न्यूट्रिएंट का एक टॉक्सिक लेवल होता है विच इज वेरी वेरी हाई। जैसे अगर आप विटामिन डी की बात करें, 600 आईयू जो है वो आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो टॉक्सिक लेवल है वो 4000 आईयू है, राइट? इसीलिए ये जो गैप है, ये गवर्नमेंट ने जो कम ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बहुत वेल रिसर्च्ड है। ऐसे ही नहीं वो कहते कि आप 100% दे सकते हो। टॉक्सिसिटी लेवल बहुत बहुत हाई होती है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है, राइट? और जो न्यूट्रिएंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं ना, हमारे डाइट से 100% मिलना, हम उनकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं। जिन जो इजीली आपके डाइट से मिल जाते हैं उनकी क्वांटिटी हम कम रखते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्म होगा या टॉक्सिसिटी होगी, बिकॉज टॉक्सिसिटी लेवल्स बहुत मल्टीपल टाइम्स होते हैं। अगर आप विटामिन बी को 200% भी किसी दिन ले रहे हैं, अगले दिन हो सकता है आप 200 ना लें, आप 100% ही लें, या किसी दिन 50% लें। ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज वो ज्यादा नहीं होना चाहिए टॉक्सिक लेवल्स को। और वैसे भी जो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, उनके टॉक्सिक लेवल्स होते ही नहीं है। उनको डिफाइन ही नहीं किया गया है, क्योंकि वो ऐसे हैं जो आपकी बॉडी से फ्लैश आउट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिक लेवल्स आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी टॉक्सिक लेवल्स बहुत बहुत मल्टीपल टाइम्स हाई होते हैं। उतना कोई भी विद सप्लीमेंट्स विद विद डाइट वो हम टॉक्सिक लेवल्स नहीं रीच कर सकते अनटिल अनलेस, जैसे कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो बहुत हाई डोसेज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन डी के सैशेज जो आपको मार्केट में मिलते हैं 60,000 आयु के होते हैं। वो मंथली डोसेज होती है, एक बार मंथ में एक ही बार खाना है। सो वो हाई डोसेजेस जो होते हैं वो बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से प्रॉपर डोसेज प्रॉपर टाइम के बिना नहीं लेने चाहिए। अदरवाइज ये जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डेली यूसेज के लिए हमने इसीलिए बनाया है। टॉक्सिक लेवल्स आप यूज वो हो ही नहीं सकते, यू कैन नॉट क्रॉस दैट। सो इट्स वेरी वेरी सेफ अगर आप न्यूट्रिय फूड के साथ ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। और सबसे पहली बात कि जो आप फूड ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप 100% विटामिन बी या सी ले रहे हैं या आयरन ले रहे हैं तो क्या वो बॉडी में 100% अब्जॉर्ब हो रहा है? वो उतना अब्जॉर्ब नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो उनकी अब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में 100% करते ही नहीं है। वो 80% 70% ही आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहे हैं। आयरन तो बहुत कम अब्जॉर्ब होता है, राइट? सो इसीलिए वो टॉक्सिक लेवल्स, ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन करके ही हमें एफएसएसएआई या गवर्नमेंट हमें बताती है कि आपको
अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, कैसे करने हैं, कितनी क्वांटिटी रखनी है ताकि आपको कोई हार्म ना हो. सो वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट एंड इवन आवर गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ दैट. किसी को भी अलाउड नहीं है उस लेवल को क्रॉस करना, चाहे हम हैं या कोई भी कंपनी है, राइट. सो इट विल नॉट हार्म योर बॉडी. सो इंग्रेडिएंट्स जब आप देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स में आप जो पहला आपका जो होता है ना, जैसे विटामिन्स लिखा है, सो मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपका विटामिन्स है, फिर मिनरल्स है. सो इट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी प्रोडक्ट में. ये तो सप्लीमेंट्स हैं. अगर आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, अगर मैं नेक्स्ट उस पे आऊं तो मैंने एक बहुत यूजुअल एग्जाम्पल भी दिया है आपको. ये कुछ कार्बोनेटेड बेवरेज का एग्जाम्पल है, ये चिप्स का एग्जाम्पल है. अगर आप ये देखें, कार्बोनेटेड वाटर मतलब ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, वाटर क्योंकि लिक्विड है. उसके बाद शुगर है, मतलब मेन इंग्रेडिएंट आप देख पा रहे हैं कि कार्बोनेटेड वाटर के बाद शुगर है सबसे ज्यादा. फिर एसिडिटी रेगुलर, फिर कैफीन, फिर कलर, फिर फ्लेवर्स. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं. आप लेफ्ट में अगर देखेंगे, सर्विंग साइज इसमें क्या दिया है, 200 ml. लेकिन जब हम 500 ml या 750 ml की बोतल खरीदते हैं, हम पूरी पी जाते हैं, राइट. सर्विंग साइज कितना दिया है कि रेकमेंडेड क्या है, 200 ml आपको पीना है, 750 ml या 500 ml नहीं, राइट. और इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू दिया है वो 100 ml की दी है. मतलब 100 ml में 42 कैलोरीज हैं. आपको लगता है ओके, अरे ये तो 42 कैलोरीज ही है, हम पूरी बोतल पी जाते हैं. लेकिन क्या आप ध्यान देते हैं, आपने 500 ml पिया, आपने 100 ml नहीं पिया, तो 42 इंटू 5 इतनी कैलोरीज आपने ली 500 ml पी के. और रेकमेंडेड कितना है, 200 ml. मतलब वो कह रहा है आप 84 किलो कैलोरीज तक आप ले सकते हो, लेकिन आपने तो 200 से ज्यादा भी क्रॉस कर दी, विच इज नॉट रेकमेंडेड. शुगर आप देखेंगे 100 ml में 10 ग्राम शुगर है. कैन यू इमेजिन, मतलब 2 चम्मच चीनी 100 ml में, तो 200 ml में कितनी हुई, 4 चम्मच चीनी हुई. तो आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट तो ये 200 ml में ही पूरी हो गई. आप कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट भी खा लेते हैं, कभी मिठाई भी खा लेते हैं, शुगर तो आप इतना एक्सेस कर रहे हो. आपको, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसको शुगर बस 3 से 4 चम्मच ही अलाउड है. शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट कोई भी, आप शुगर ले रहे हो, हनी ले रहे हो, जैगरी ले रहे हो, ये सारे शुगर में ही काउंट होते हैं. तो आपको, आप प्लीज लेबल्स रीड करें, आप देखें आप कितना शुगर, कितनी एनर्जी. सो आपने देखा 100 ml, बट यू आर कंज्यूमिंग 500 ml. सिमिलरली ये जो राइट में आप चिप्स का पैकेट देख रहे हैं, ये पर सर्व, मतलब सर्विंग कितना बोला है उन्होंने, आप 20 ग्राम चिप्स ही खा सकते हैं. लेकिन 100 ग्राम, अगर 50 ग्राम का वो पैकेट है तो आपको पूरा पैकेट नहीं खाना है. रेकमेंडेड 20 ग्राम ही है, लेकिन बहुत छोटा सा लिखा होगा ये फ्रंट में. ये लोगों को कंफ्यूज करने के तरीके हैं, राइट. सो और उस 20 ग्राम से आपको 100 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, लेकिन आपने कितना खाया, आपने करीब उसका डबल ट्रिपल खाया. तो आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कैलोरीज भी तो आपको डबल ट्रिपल ही मिलेंगी. सो ऑलवेज चेक. आज आप प्लीज, टास्क है आप लोग के लिए, गो चेक योर बिस्किट्स. आपके घर पे, सबके घर में आई थिंक बिस्किट्स होंगे. आप उसके पीछे देखिए कितना रेकमेंडेड है. आप एक दिन में 2 बिस्किट ही खा सकते हैं. 2 बिस्किट में आपके कितनी कैलोरीज हैं, कितना शुगर है, कितना फैट है. सो बी माइंडफुल. एंड आप ये चीज आगे भी समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, अपने जो अपनी फैमिलीज में अपने फ्रेंड्स को समझाएं कि प्लीज ये जो मार्केटिंग, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको दिखते बहुत अच्छे हैं, पैकिंग इनकी बड़ी बड़ी दे देते हैं, लेकिन उसमें रेकमेंडेशन उतना ही होता है, राइट. अगर आप कोई चॉकलेट खरीदते हैं तो उसमें आपको रेकमेंडेड होगा 4 स्क्वायर्स, लेकिन हम पूरी चॉकलेट खा जाते हैं. लेकिन रेकमेंडेशन कितना होता है, आप 4 ही खाइए. लेकिन क्या आप, आपको ये भी जज करना है कि मैंने 4 बार्स अगर खा ली तो मेरा शुगर इनटेक तो उसी से पूरा हो गया, अब मुझे और कोई शुगर नहीं लेना है फिर दिन भर में, राइट. ओके. आज हमने आई थिंक बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करी. हम बहुत थोड़ा सा, वील टेक लेस टाइम ऑन प्रोडक्ट्स टुडे. ओके. सो इंटेलिजेंस हम बता चुके हैं. लेट्स टॉक ऑन कोर एसेंशियल्स भी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट. सो दिस इज अ प्रोडक्ट डिजाइन
जो आपके सेलुलर लेवल को, सेलुलर रिस्पॉन्स को टारगेट करता है, राइट। सो ऐसे ही ये नहीं है कि इसमें विटामिन्स भी डाल दिए, मिनरल्स भी डाल दिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है इट्स मेंट फॉर योर सेल सिग्नलिंग, एक्टिवेट्स, आपके सेल को एक्टिवेट कर रहा है, राइट, बिकॉज और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये आपके सेल को डैमेज होने से बचाते हैं, यू राइट। सो इट हैज, अगर इसमें बहुत सारे विटामिन्स है तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, सो मेनी पीपल आस्क मी क्या हमें कोर एसेंशियल्स हमेशा खाना है, लाइफ टाइम खाना है, हमारी बॉडी को यूज टू तो नहीं हो जाएगा। सो आप क्या रोज रोटी खाते हैं, रोज चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दैट्स द नीड ऑफ योर बॉडी टू सर्वाइव। इसमें भी वही न्यूट्रिएंट्स हैं और वेरी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए चाहिए। सो आप ये 3 से 4 महीने लगातार लें। आपको अगर लग रहा है कि बॉडी, आप 1 महीने का गैप दे सकते हैं, फिर आप इसको लीजिए, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम अफेयर। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लाइफ टाइम लेने हैं, कोर एसेंशियल्स है, ओमेगा है, फाइबर जी है, जैसे these supplements you need it, your body demands it, okay, to function normally। फिर सेकेंड हम ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, आपके जो सेल होता है ना, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं हर सेल के। दैट इज वाई इट्स अ सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी, बिकॉज वी हैव थॉट ऑफ सेल्स, वी हैव थॉट ऑफ सेल्यूलर न्यूट्रिशन, राइट। तो सेल का पार्ट होते हैं और उस मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, राइट। सो अगर फ्लेक्सिबल होगी तो जितने न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए सेल में, जितनी क्वांटिटी में वाटर आना चाहिए, वो प्रॉपरली आ सकता है, सेल सिग्नलिंग प्रॉपर हो सकती है, राइट। सो दैट इज व्हाई दे आर बेसिक नीड्स। और रिसेंटली ये देखा गया है कुछ स्टडीज में, वेरी फ्यू स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया, और उसमें देखा गया है कि अर्बन वुमेन पे ही कंडक्ट हुई हैं, कि जितना रेकमेंडेड होता है ना ओमेगा 3, हम उसका शायद 20% ही कंज्यूम कर रहे हैं, हम 100% कंज्यूम। और जो ये ओमेगा 3 होता है, ईपीए डीएचए, ये बहुत डिफिकल्ट है फ्रॉम डाइट। ओमेगा 3 भी 3 टाइप के होते हैं, एक ईपीए, एक डीएचए और एक एएलए, जो आपको वेजिटेरियन फूड से मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि ओमेगा 3 चाहिए तो आप वॉलनट खाओ, फ्लैक्स सीड्स खाओ, चिया सीड्स खाओ, बट उसमें एएलए है, उसमें ईपीए डीएचए नहीं है। और एएलए जो है आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है ईपीए डीएचए में टू गेट एक्टिव, और उसका कन्वर्जन रेट हार्डली 8 से 20% है। मतलब अगर आप 100 ग्राम एएलए खाएंगे तो उसमें से हार्डली 8 से 10 ग्राम या 20 ग्राम ही आपकी बॉडी में कन्वर्ट होगा ईपीए डीएचए में और अब्जॉर्ब होगा। सो दैट इज वाई ईपीए डीएचए को एज सच अगर आप लेते हैं तो वो तुरंत ही अब्जॉर्ब होता है, सेल तक जाता है, एक्टिवेट करता है, सेल की मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, हार्ट हेल्थ, ब्रेन, बिकॉज सेल्स तो हर जगह हैं, हार्ट में भी हैं, ब्रेन में भी हैं, आईज, जॉइंट, स्किन, योर बोन्स, एवरीवेयर देयर आर सेल्स। तो इसीलिए ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, दैट एवरीवन शुड टेक, एवरी हेल्थी पर्सन शुड टेक टू मेंटेन देयर हेल्थ। कोक्यूनॉन, सो कोक्यूनॉन जो है वो आपके हमारी बॉडी कोएंजाइम बनाती है, राइट। जो सेल्स है ना, अगेन सेलुलर न्यूट्रिशन, सो सेल्स जो हैं वो कोएंजाइम को यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो वो सेल्स कोएंजाइम को यूज करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। बट विद टाइम, विद एज, विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कोएंजाइम का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। एंड वाई हार्ट हेल्थ, क्योंकि कोएंजाइम का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपके हार्ट मसल्स में होता है। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए टू पंप ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। सो दैट इज वाई जो आपको लगेगा जो 20s में मेरी एनर्जी थी ना, वो 30s या 40s में नहीं है, बिकॉज योर कोएंजाइम प्रोडक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो हम इसलिए टू टू फॉर दैट हेल्दी और एनर्जेटिक डे, आप कोक्यूनॉन से अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो विल हेल्प मेंटेनिंग योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और हार्ट हेल्थ। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ओवरऑल एनर्जी के लिए और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत अमेजिंग सप्लीमेंट है, राइट।
सो नेक्स्ट इज प्रोफ्लेवनॉल, इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और विटामिन सी है। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। सो ये बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि जब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आप विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो, स्पेशली फॉर हार्ट हेल्थ एंड फॉर इम्यूनिटी। एंड ऑफ कोर्स विटामिन सी है तो वो स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, और ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट हेल्थ की, या माइनर एलिवेटेड आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, या थोड़ा बहुत बीपी का इशू रहता है, या फिर आपको लगता है कि यू नीड सपोर्ट फॉर योर हार्ट, देन प्रोफ्लेवनॉल इज वेरी गुड सप्लीमेंट। बट अगेन माइंडेड, हार्ट हेल्थ इज जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने हार्ट के लिए आप प्रोफ्लेवनॉल लिया, ऑफ कोर्स इट विल सपोर्ट, बट योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर लाइफस्टाइल, होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है टू कीप योर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। देन मैग्नीक डी, ऑफ कोर्स ये बोन के लिए है, बिकॉज इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, बोरॉन। सो विटामिन डी कैल्शियम के लिए, सो अगेन वी टॉक अबाउट सेल्यूलर न्यूट्रिशन हेयर। कैल्शियम और विटामिन डी का आपने तो कॉम्बिनेशन सुना होगा, मार्केट में भी देखा होगा, बट विटामिन डी हेल्प तो करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन कैल्शियम आपके बोन्स तक पहुंचाने के लिए, उसको एफिशिएंटली डिपॉजिट करने के लिए, विटामिन डी को एक्टिव रखने के लिए बोरॉन और मैग्नीशियम की जरूरत होती है। सो दिस हैज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सिनेजेस्टिक रेशियोज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, जो आपके बोन को, मसल को, नर्व हेल्थ को, ये सारे न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करते हैं। ओके, प्रोकोसा इज फॉर योर जॉइंट हेल्थ, इसमें ग्लूकोजमीन है, इसमें सपोर्ट। सो अगेन ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये सिर्फ ग्लूकोजमीन नहीं है, ये ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन है जो कॉम्बिनेशन है, इट हैज सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इट हैज कर्क्यूमा लॉन्गा, ग्लूकोजमीन, और ये जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में है, इट्स नॉट कि इसमें कम क्वांटिटी क्यों है विटामिन सी की, पोटेशियम की, क्योंकि अगर मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि जो ये माइन्यूट क्वांटिटीज अगर इस कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो ये सेल सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मेरी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, इन्हीं क्वांटिटीज में राइट कॉम्बिनेशन, राइट फॉर्मेट्स में अगर आप देंगे सेल को, तो सेल सिग्नलिंग ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगी। सो इट्स द प्रोडक्ट डिजाइन, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइन which is supporting your joint health, mobility support, vegetarian source है, joint को आपको जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं कि आपको पेन हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, क्यों, क्योंकि आपका कार्टिलेज ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, राइट। जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं तब आप इसको अगर आप लेते हैं तो ये कार्टिलेज रीजनरेट करने में हेल्प करता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जॉइंट खत्म हो गया है, नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तब ये जनरेट नहीं करेगा, प्लीज रिमेंबर। सो इट हैज टू बी, ये जो सप्लीमेंट्स है दीज आर मोर ऑन द प्रिवेंटिव साइड, नॉट ऑन द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ड्रग्स करते हैं, प्रिवेंशन सप्लीमेंट्स करते हैं, राइट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक इट एंड हाउ लॉन्ग यू कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि मैंने 1 महीने लिया, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, नहीं होगा। ये ड्रग नहीं है, राइट, ये मेडिसिन नहीं है, ये आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना है। यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, accompanied with healthy lifestyle, diet and exercise, राइट। अगर जॉइंट का कोई ट्रीटमेंट भी होता है, फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका जॉइंट पूरा एक नी खत्म हो चुका है, कार्टिलेज साइनोवियल फ्लूइड, उन्होंने डॉक्टर ने उनको एक ट्रीटमेंट दिया है जहाँ पे उन्होंने कुछ फ्लूइड, कुछ इंजेक्शन दिया है उनके जॉइंट में, और एक सपोर्ट सिस्टम, कुछ इक्विपमेंट लगाया है उनके जॉइंट पे, राइट। बट उन्होंने ये कंप्लीट नहीं होता, उन्होंने कहा है, डॉक्टर ने, इज अ वेरी वेल नोन, वेरी गुड ऑर्थोपीडिक डॉक्टर, उन्होंने ये इंजेक्शन दिया, जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया, सप्लीमेंट्स दिए साथ में उन्होंने कहा कि आपको हफ्ते में 2 दिन जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है, डेली आपको मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करनी है, डाइट में आपको फ्लैक्स सीड्स डालने हैं, आप सोयाबीन इंक्लूड करें, ये सारा उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया है। So it's just not one thing that works for your body.
ऑलराइट, सो ये विजन एक्स इज इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, ये मैं भी ले रही हूँ। एंड ये भी आपको कंटिन्यूअसली 6 महीने 12 महीने तक लेना पड़ता है, बिकॉज इसमें कैरोटिनॉइड्स हैं, नेचुरल विटामिन ए के फॉर्मेट्स हैं जिनको हम ल्यूटिन या xanthin कहते हैं, जो आपकी रेटिना में ऑलरेडी होते हैं, बट विद टाइम विद सो मच ऑफ डिजिटल जो प्रेशर है, एक स्ट्रेन है, वो आपके इन कैरोटिनॉइड्स को कम कर देती है, जिससे आपकी विजन अफेक्ट होती है, आपको ब्लर दिखने लगता है, या फिर आपको बहुत स्ट्रेसफुल आइज लगती हैं, थकान होने लगती हैं, राइट। सो जब आप इसको लॉन्ग टर्म लेते हैं तो आपके ये वापस रेटिना में डिपॉजिट होने लगते हैं, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज दीज आर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, इट विल टेक टाइम टू वर्क, यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट, आपको अपना डिजिटल स्ट्रेन जो है वो कम करना चाहिए, आंखों की एक्सरसाइज करिए, अच्छा डाइट लीजिए, विजन एक्स लीजिए, देन यू विल सी रियली सी डिफरेंस इन 6 months और 12 months, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, राइट। कोपा प्राइम फॉर मेमोरी सपोर्ट, सो इसमें बहुत अमेजिंग हर्ब्स हैं, इसमें ब्राह्मी है, हमारे ब्राह्मी आप सबने सुना होगा, इट्स वेरी वेरी गुड हर्ब, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट एंड अमेरिकन जिनसेंग, जो आपके मेमोरी पे, फोकस पे, कंसंट्रेशन पे सपोर्ट करता है। सो कई लोग कहते हैं कि मुझे ब्रेन की प्रॉब्लम होगी तभी हमें क्या इसको लेना है। सो वी डेली का जो इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सो मच ऑफ प्रेशर, हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, हमने फोन कहाँ रख दिया, हमने टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, लॉट ऑफ पूरे दिन की थकान, ऐसा लगता है कि यू हैव सो मच ऑफ मेंटल प्रेशर, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो। व्हाई नॉट सपोर्ट योर ब्रेन फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि लेटर ऑन हमें ये मेमोरी इश्यूज, हमें इतने जो इश्यूज हो रहे हैं आजकल, मेंटल रिलेटेड इश्यूज, वो हम प्रोग्रेस ही ना करें, हम वहां तक जाएं ही ना। सो अलोंग विद कोपा प्राइम, सोशलाइजिंग, हैप्पी रहना, खुद को खुश रखना, डू व्हाट यू लाइक, एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को अफेक्ट करते हैं। सो कंबाइनिंग दिस विद योर मेंटल सपोर्ट, जो आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी रहने में सपोर्ट कर रहा है, एंड दिस इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट, यू शुड ऑलवेज, अगेन ये भी आपको 6 महीने से साल भर तक आप जब लेंगे, ग्रेजुअली ये आपके सेल्स को सपोर्ट करेगा, एंड यू विल फील डिफरेंस इन योर आपका जो ब्रेन की थकान हो जाती है, मेंटल एग्जॉशन हो जाता है, मेमोरी, you will feel that focus concentration coming back with all of these efforts. हेपासिल, इट्स अगेन लिवर, जो इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट डिजाइन है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस अच्छा कई लोग कहते हैं कि ओके जो दूसरे लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट्स है उसमें जो है ना मिल्क थिजिल का क्वांटिटी बहुत है, हमारे में कम है, सिस्टीन का ज़्यादा है, हमारे में कम है। अगेन हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, हमें राइट कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत होती है, जो मिनिमम क्वांटिटी आपके सेल को सिग्नल दे सके कि यस नाउ दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सो उनको ये पता ही नहीं है कि हर कोई इन्फ्लुएंस होने लगता है कि उसमें तो ये ज़्यादा है, इसमें कम है, तो लेकिन आपका फोकस क्या होना चाहिए? डॉक्टर मायरन वेंस हैज ऑलवेज फोकस्ड द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड राइट क्वांटिटी, जो आपके सेल्यूलर लेवल तक जाके टारगेट कर सके। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको बहुत क्वांटिटी होगी तभी आपके सेल सिग्नलिंग होगी, एक्टिवेट होगी। सो दिस इज फॉर योर लिवर सपोर्ट। लिवर बहुत सारे काम करता है, डाइजेशन को से लेके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, आपके रेड जो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय बेसिकली वो करता है, जो खराब हो जाते हैं, राइट। आपके जो लोग वेट लॉस पे हैं उनका लिवर अच्छा है क्योंकि वो फैट मेटाबोलाइज कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज कर रहा है, राइट। सो अगर लिवर अच्छा है तो आप जितने भी हमारे आजकल इतने टॉक्सिन्स हैं, राइट, वी आर पोल्यूशन से, स्ट्रेस से, आपके फ्री रेडिकल्स कितने जनरेट हो रहे हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है, आपका जो नेचुरल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो बॉडी में ऑलरेडी है उसको सपोर्ट करता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। फाइबर जी अगेन
फाइबर इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर गट हेल्थ। क्यों? आपके गट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं और भी माइक्रोब्स हैं जो आपके गट को अच्छा रखते हैं। फाइबर उनका फूड है, खाना है, नरिश करता है, राइट? सो अगर आपका गट अच्छा है, तो मैं बहुत बार आई थिंक ये बता चुकी हूँ कि गट और ब्रेन का बहुत डायरेक्ट लिंक है। गट अच्छा है तो आपके बाकी ऑर्गन्स, आपके लिवर, किडनी, स्किन, ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेंगे, बिकॉज गट अच्छा है, बैक्टीरिया अच्छा है उसका। जो फाइबर है वो आपको वेट मेंटेनेंस में भी सपोर्ट करता है, आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, आपके ब्लड नॉर्मल, जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको नॉर्मल रखने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। सो दिस हैज वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी वेरी नेचुरल फाइबर्स, साइलम हास, इन्यूलिन, फॉस एंड एप्पल फाइबर। न्यूट्री मील अगेन, जो न्यूट्री मील है वो ये मील रिप्लेसमेंट है। इट हैज, सो जब कोई वेट लॉस या मेंटेनेंस पे होता है तो हमारा एम क्या होता है? हमारी कैलोरीज को कम करना, राइट? बट न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट? सो ये आप 1 से 2 मील्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है, वे प्रोटीन है। सो कैलोरीज कम है, 235 किलो कैलोरीज हैं, बट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोटीन, फाइबर एंड वाइटामिन एंड मिनरल्स। सो इट हैज, ये आपको कैलोरीज कम देगा लेकिन आपके प्रोटीन को अच्छा रखेगा। 20 ग्राम्स प्रोटीन, 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर। और जब ये प्रोटीन और फाइबर का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है, सटाइटी मिलती है आपको, 3 से 4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, आपको सस्टेन्ड एनर्जी भी मिलेगी। ओके, दिस इज द राइट टाइम ऑफ हैविंग सप्लीमेंट्स। सो 2 टैबलेट्स जो आपको, सो ये देखा गया है कि अगर आप ये जितने भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, मैग्नीकैल, आप विद मील लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, राइट? सो आप फैट कंटेनिंग मील के साथ लेंगे तो ये बेस्ट अब्जॉर्ब होंगे। ड्यूरिंग द डे लेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर स्पेसिफिकली फॉर कोर एसेंशियल्स, इसमें बी वाइटामिन हैं, अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, तो ये आपकी पूरे डे की एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। और ओमेगा भी आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, किसी भी मील, बट जब भी कोई सप्लीमेंट लें, ट्राई टेकिंग ड्यूरिंग द डे विद मील्स। चाहे आप लंच, ब्रेकफास्ट, मिड मील, इवनिंग स्नैक तक आप ले सकते हैं। मैग्नीकैल के लिए भी मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून। Procosa also morning, evening with meals. All of them with meals during the day is very very important. Similarly for कोक्यूनॉन, अच्छा कोक्यूनॉन एनर्जी तो हमको सुबह ही चाहिए, राइट? सुबह अच्छी एनर्जी मिल जाएगी तो दिन भर हम अच्छा रहेंगे, ब्रेन हमारा सुबह ही एक्टिव हो जाएगा तो हम पूरा दिन अच्छे से चला पाएंगे। सो कोक्यूनॉन, कोपा प्राइम मॉर्निंग, कोर एसेंशियल्स मॉर्निंग, क्योंकि हमें दिन भर की एनर्जी चाहिए। प्रोफ्लेवनॉन एनी टाइम ऑफ द डे, अगेन विद मील्स ले सकते हैं। कई लोग इसको एम्प्टी स्टमक भी लेते हैं, वो भी ठीक है, बट कई लोगों को एम्प्टी स्टमक लेने से नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें होती हैं, राइट? और विजन एक्स भी आप ड्यूरिंग द डे लेंगे, क्योंकि इसमें कैरोटिनॉइड्स हैं। विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल होता है, कैरोटिनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल। ऑलवेज विद मील्स और मिड मील्स, जो भी आप ले रहे हैं ड्यूरिंग द डे लें, लेकिन मील्स के साथ लें। सेम विद हेपासिल। हेपासिल में क्या होता है कि आप मॉर्निंग, रात को आपका लिवर जो है, बहुत सारे टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तो अगर आप इसको सुबह लेंगे तो आपका जो जो रात में दिन भर की टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हुए हैं वो इफेक्टिवली लिवर आपको बाहर फेंक पाएगा, डिटॉक्स हो पाएगी। सो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। फाइबर जी एनी टाइम ऑफ द डे, वेन एवर इट सूट्स यू। कई लोग मॉर्निंग लेते हैं, मिड मॉर्निंग लेते हैं, इवनिंग लेते हैं, रात के डिनर से 45 मिनट्स पहले लेते हैं, एनी टाइम ऑफ द वे, क्योंकि ये बहुत नेचुरल फाइबर है, आप कभी भी ले सकते हो इसको। और न्यूट्री मील तो सबको पता है, 1 से 2 मील्स आपको रिप्लेस करनी है, चाहे वो आप ब्रेकफास्ट करें, चाहे लंच करें या डिनर करें, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। सो ये बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट मतलब दिन भर में हमें सीरियल्स के पोर्शन, विमेन को 6 चाहिए और मेन को 8 चाहिए, टू मेंटेन योर वेट। अगर आपका नॉर्मल वेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज नहीं है, और यू वेरी हेल्दी, देन यू हैव टू टेक, सो एक पोर्शन क्या है, 1 चपाती, 1 बोल ऑफ राइस, 1 कटोरी ऑफ राइस,
राइट। अगर आपने सुबह एक पराठा ले लिया, दोपहर में 2 रोटी ले ली, रात को 2 रोटी और शाम को एक ब्रेड स्लाइस, तो आपके 6 सर्विंग्स हो गए, राइट। उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। लेकिन जब आप वेट लॉस डाइट में होते हो तो यही पोर्शन आपको सीरियल्स के कम करने हैं। मतलब सुबह आप एक पराठा या रोटी, दोपहर में एक रोटी, शाम को कोई एक सीरियल वाला स्नैक, सैंडविच और मे बी, एंड रात को एक, तो 4 हो गए। तो 3 से 4 ही लेने हैं। एंड देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पल्सेस, लेग्यूम्स, आपकी सब्जियां। आपको अच्छी मात्रा में 2 से 3 कटोरी आपको पल्सेस लेने हैं। पल्सेस ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 कटोरी दाल लो। आप 1 कटोरी दाल, स्प्राउट्स आप किसी में डाल सकते हो। आप चने के कबाब बना सकते हैं। आप चिकपी हमस का यूज कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको लेना है, राइट। 400 ग्राम सब्जी लेनी है आपको दिन भर में। तो मतलब आप किसी भी फॉर्म में लें, सैलेड के फॉर्म में लें, आप कुक्ड वेजिटेबल के फॉर्म में लें, पोहा में डाल सकते हैं, सैंडविच में आप डालते हो। तो ओवरऑल वेजिटेबल का कंजम्पशन अच्छा रखना है। फ्रूट एक ही लेना है, 1 फ्रूट इन अ डे, विच इज़ 100 ग्राम्स, और मे बी, और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या डायबिटीज़ हैं तो बहुत स्वीट फ्रूट्स हैं, उनको अवॉइड करना है। उनका पोर्शन बहुत कम रखना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, लेकिन आप टोन्ड मिल्क लें, लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें। दूध आप टोन्ड मिल्क लें, उसी से आप पनीर बनाएं, उसी से आप कर्ड बनाएं। और नट्स आपको वही हैंडफुल लेने हैं। फैट एंड ऑयल का कंजम्पशन कम करना है। मतलब बहुत रिच ग्रेवीज, फैट, अगर आप दिन भर में बटर, घी, घी भी आपको 1 टीस्पून लेना है दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, राइट। सो दिस इज अ बैलेंस डाइट विद रेगुलर एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन। अगर आप ये होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो यू विल रियली फील द डिफरेंस। आफ्टर 3 मंथ्स आप मुझे बताएंगे कि ओके, ये मैंने सारे स्टेप्स मैम फॉलो किए। with diet, exercise, supplements, regular consistency is important. Do remember, I know हम बहुत टेंडेंसी होती है हमारी भूलने की सप्लीमेंट्स। सो आप अलार्म लगा के रखिए, या आप रिमाइंडर्स डाल के रखिए। इनिशियली आपको रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी, मे बी फॉर अ मंथ, बट यू विल गेट इन टू दैट हैबिट आफ्टर अ मंथ, राइट। आपको याद होगा, जैसे आज मैं सुबह ऑफिस आई हूँ और आई हैव नॉट फॉरगटन माई सप्लीमेंट्स। मैंने सप्लीमेंट्स लिए, अपने बैग में डालें, तभी मैं आई हूँ, राइट। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हम आई थिंक स्किन केयर नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, टाइम हो चुका है। देर विल बी, गुंजन ने एक सेपरेट स्किन केयर सेशन भी लिया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग ले, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। सो ओके, हेपासिल आफ्टर डिनर, नो शिराजी, ट्राई टेकिंग इट मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेकफास्ट या लंच के साथ लें, दैट इज़ वेरी गुड। आफ्टर डिनर क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, सारी बॉडी सिस्टम स्लो है, राइट। सो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। यस, इवन गौरव जी सब कहते हैं हिमालय ले 52 प्राइस वाइज, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइस क्या होता है कि इट डिपेंड्स। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जिस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, और जो रही सही कॉम्बिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि हमने वो उस सप्लीमेंट में ना वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नो, इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपको क्या सही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्या आपको सही फॉर्मेट ऑफ सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं जो आपके सेल तक जाके उसके सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो वेट मैनेजमेंट के लिए न्यूट्री मील, और आइदर न्यूट्री मील और फाइबर जी, क्योंकि न्यूट्री मील में भी बहुत अच्छा फाइबर है, तो एक्सेस ऑफ फाइबर इज ऑल्सो नॉट गुड। आप अगर न्यूट्री मील ले रहे हैं, 1 से 2 मील्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो फाइबर जी नहीं लेना है। और बाकी कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद इट, बिकॉज ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये आपके हार्मोन के लिए भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। सो कई बार लोग को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती, तो भी लोग वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। सो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। बायोमेगा इसलिए क्योंकि ओमेगा 3 आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखते हैं, राइट, नॉर्मल रखते हैं। और these 3 4 supplements are important along with
good diet and regular physical activity. अच्छी physical activity, at least 1 hour daily, at least 4 to 5 times a week, 5 days a week, and 1 hour daily exercise. Okay, I'm sorry, Vivekanand ji, if you have not understood, maybe we can, if you want to understand more, we can connect over call. अगर आपको कुछ specific समझना है, we can connect over call and I can explain you in English separately also. No, Copa Prime, sir, it's for 12 years plus. 8 साल के बच्चे के लिए नहीं है. 8 साल के बच्चे तो वैसे ही बहुत एक्टिव और बहुत दे आर वेरी वेरी, उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें प्लीज़. आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन फोन एडिक्शन हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग डिक्रीज इन देयर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़. आप देखेंगे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है, हम अपनी ईज के लिए उनको स्क्रीन दे देते हैं, बट दे आर अफेक्टिंग देयर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. गो, encourage them to go out and play, right? Physical activity, physical play, sports is very very important, and a good diet, of course. Yes, मैं ये PDF शेयर कर दूंगी. Hmm, और कौन सा है? ओके. Can we add shake? No, no, no. 4 year kid के लिए please no supplement here for kids except Copa Prime, और वो भी 12 साल प्लस के लिए. ओके, आई थिंक मोस्टली तो मैंने आंसर कर दिए हैं. फॉर बेबीज अभी कोई नहीं है सप्लीमेंट सर. वी विल बी कमिंग अप. फॉर किड्स देर आर नो सप्लीमेंट्स एज सच एक्सेप्ट कोपा प्राइम, वो भी 12 साल से प्लस के बच्चे के लिए हैं. एंड या नहीं, प्लीज 8 years के बच्चों को जरूरत ही नहीं है सर न्यूट्री मील की. यू कैन गिव गुड प्रोटीन टू योर किड्स. दूध, दही, पनीर, दालें, स्प्राउट्स, आप किसी भी फॉर्मेट में दें बच्चों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, अनटिल अनलेस उनके डॉक्टर ने कहा है बहुत ज़्यादा कुछ माल नरिशमेंट है, कोई इश्यू है. अदरवाइज नॉर्मल डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स इनफ है बच्चों के लिए. आई नो बच्चे नहीं लेते हैं, बहुत मुश्किल है. कोपा प्राइम 2 ही लेने हैं 12 साल के प्लस के लिए, बिकॉज द डोसेज इज दैट वेज. फॉर malnourished सर, न्यूट्री मील इज नॉट फॉर किड्स. दिस इज अ मील रिप्लेसमेंट. इट्स नॉट कि आप कोई जनरल प्रोटीन सप्लीमेंट है ये. सो बच्चों के लिए वी कैन कनेक्ट. मधु जी, इफ यू वांट टू कनेक्ट ऑन कॉल, आई कैन टेल यू वेज हाउ टू आप बाकी सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछें, मल्टीविटामिन या प्रोटीन डॉक्टर के पास आप जाके बच्चों के लिए पूछें. आई नो, आई ऑल्सो मिस. थैंक यू सो मच शिराज जी इन बैंगलोर. आई we'll meet soon. एनी फ्लेवर इज, आप वनीला चॉकलेट जो भी आपको फेवरेट लगे, द इंग्रेडिएंट्स आर सेम, जस्ट फ्लेवर अलग है. सो अडल्ट को अप्रॉक्स 2000 किलो कैलोरीज चाहिए, बट पूनम जी वो डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर हेल्दी, वेट नॉर्मल है, इफ़ यू आर रेगुलर एक्टिव, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी करें. लेकिन जहाँ वेट लॉस करना होता है वहाँ पे हम 1500-1600 किलो कैलोरीज पे भी आते हैं. इवन फॉर डायबिटिक्स कैलोरीज शुड बी लेस, मोर ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस डाइट. Yeah, I think I mostly have answered all the questions. Thank you so much for being there. Let's connect again. कल हमारा डॉक्टर का सेशन है, Ask the Doctor series. We have Dr. Saurabh with us tomorrow. Please do attend 7 p.m. tomorrow. Very very informative session. हमारे डॉक्टर आ रहे हैं. He's a general physician and he will be taking the session tomorrow. Please be there. आप अपने सब team members को inform करें. We will be circulating the information soon. Yeah, okay, thank you so much, everyone. Bye.